Hi students, today I am going to start OC Organization of Commerce. We have already started business services. Lesson number 4, that is the business services. So बच्चों हमने बताया था what is the business services. Business services are the things that is helps to the business. We have finished the introduction, meaning, definition, features of the business services. So it is also called the edge to trade. So in that I have told you that business services are all that agency and things that helps to the business. So here warehouse, transportation, banking, insurance, these are the major business services. They are helping to the business to run the business smooth manner. Okay, so we have already finished all these things. So today I am going to start what is a bank, business services, that is a bank. So they go here, the name of the lesson is a banking. So and we are going to study bank. So what is the difference of bank and banking? So ये हम पढ़ने वाले हैं. So what is a bank? What is a banking? So देखो bank means what? Bank is a financial institution. Bank is a financial institution, and the word banking means what? The work of the bank. What is the function of bank? That is called the banking. Okay, so today I am going to start the meaning, definition and types of bank. What is a bank and banking, definition of bank and banking, and types of bank. So let's start students. So first, before the bank, if there is a no bank in the countries, जब हमारे पास बैंक नहीं थे, so we are saving the money in the book, or we are to the save the money in the earthen pots, or if the some this kinds of the thing where lockers, safe locker in our house, so we save the money is there. बट दिस इज देयर इज अ नो सेफ्टी, मतलब वहाँ पे बच्चों को कुछ सेफ्टी नहीं थी. हम पैसा कहाँ पे अर्थन पॉट्स हो गए उसमें रखते थे, या फिर हम पैसे क्या करेंगे अपने जो ट्रंक है उसके अंदर रखते थे, या फिर हम देखो बुक के अंदर पैसा जमा करके रख रहे हैं, या फिर हमने क्या किया घर में कोई सेफ है उसके अंदर पैसा जमा करके. सो उसका प्रॉब्लम क्या होता, देयर इज अ नो सेफ्टी ऑफ द मनी बच्चों. ठीक है, देयर इज अ चांसेस ऑफ थेफ्ट स्टोलन बाय द रॉबर्स. जो रॉबर्स होता था, रॉबरी करता था, थेफ्ट हो गया, वो थेफ्ट करता था, स्टोलन करता था पैसे को. ठीक है, मतलब देयर इज अ नो सेफ्टी ऑफ द मनी. तो हमारी जो जमा की हुई पूंजी वो क्या होती थी बच्चों, वेस्ट हो जाती थी, और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता, पैसा एकदम ब्लॉक होता. मनी इज इन द कैश फॉर्म. मोस्टली मनी किस में था, कैश फॉर्म में था. ठीक है, तो बाद में जैसे बैंक आया, सो देयर इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ बैंक. So to provide the safety of your being, to provide the safety of your money and to channelize your saving from unutilized sector to the प्रोडक्टिव सेक्टर. जो अनप्रोडक्टिव सेक्टर में जो पैसे पड़े थे वो पैसे को प्रोडक्टिव सेक्टर तक चैनलाइज करने के लिए हमारे पास क्या आ गया, बैंक आ गया. तो बैंक वो कैसे फंड को चैनलाइज करता है अनप्रोडक्टिव सेक्टर से. द पर्सन हु हैविंग द फंड बट दे आर द फंड इज अनयूटिलाइज. दो फंड है उसके पास पैसे है लेकिन वो अनयूटिलाइज है, और वो पैसे क्या कर रहे हैं, कुछ अर्न करके नहीं दे रहे. तो ऐसे अनप्रोडक्टिव सेक्टर से जो पैसे है वो प्रोडक्टिव सेक्टर में बैंक कैसे चैनलाइज करता है, जिसको बोलते हैं बैंकिंग. वही बैंक का काम होता है. सो बैंकिंग, बैंक क्या होता है, बैंकिंग फंक्शन करता है. तो बैंक फंड को कैसे चैनल करता है, बैंक फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक. दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ बैंक विच इज कॉल्ड द बैंकिंग. बैंकिंग मेन फंक्शन है एक्सेप्ट द डिपॉजिट. फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक. Okay, in the form of different deposit accounts. So there is a different deposit accounts. Some people are deposit the money online deposit, means what, they go to the ATMs, they can be deposit the money, or they can be deposit the money in the cash counter of the bank. So bank accept the deposit from the public. This is the source of the fund for the banking, and this fund channelized by the bank by giving the loans and investment advances to the needy person. Okay, the person who have the fund and the person who need of the fund, both person comes together because of this banking functions. इसको बोलते बच्चों बैंकिंग. ठीक है, तो जब बैंक आया तो बैंकिंग के फंक्शन हो गए. बैंक ने क्या किया, जो फंड आपके पास आइडल पड़ा होता वो फंड को क्या किया, लोन से एडवांस में देख के उसको क्या किया, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया. ठीक है, सो बैंकिंग मीन्स व्हाट, लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन. द टर्म बैंक कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंको विच मीन्स द बेंच. ठीक है, देखो जो बैंक जो वर्ड है ना, ये बैंको ये जो शब्द है उससे है, जिसका मतलब बेंच. बेंच मतलब क्या, टेबल. हाँ, उसको क्या बोलते हैं, बेंच बोलते हैं. इन अर्लियर डे मनी लेंडर्स यूज टू डिस्प्ले द कॉइन इन डिफरेंट करेंसी इन द बिग हीप. हाँ, मतलब पहले के जमाने में क्या होता था, जो मनी लेंडर्स होते हैं ना, जो साहूकार होते हैं, जो पैसा लेंड्स करना चाहते, द पर्सन हु वांट टू लेंड द मनी, दे डिस्प्ले द कॉइन ऑफ द डिफरेंट करेंसी. अलग अलग करेंसी के जो कॉइन है वो डिस्प्ले करते थे बिग हीप, मतलब भारी मात्रा में. एंड बेंचेस और बेंचेस ऑफ द टेबल for the purpose of lending or exchange. So banking started in that time. तो उस टाइम पे बैंक की शुरुआत हो गई. तो उसी तरीके से बैंक जो है, बैंकों से क्या हो गया, बैंक वर्ड क्या हो गया,
इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। सो मीनिंग अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डील विद द डिपॉजिट एंड एडवांसेस, ठीक है। बैंक क्या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंस मतलब पैसे का इंस्टीट्यूशन है, विच डील विद द डिपॉजिट एडवांस अदर रिलेटेड सर्विस। डिपॉजिट एडवांस, दिस इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक. Along with that, bank also provide other related service, which is called the non-banking function also. Bank provide the various service related to the money or financial requirement of the consumers. तो बैंक क्या करता है, हर एक सर्विस, अलग अलग टाइप की सर्विस जो पैसे से रिलेटेड है, जो फाइनेंस से रिलेटेड है कंज्यूमर के, उससे क्या होता है, डील करता है, ठीक है। सो डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग, सो देखो एज पर द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ऑल द बैंक इज रजिस्टर्ड अंडर द दिस एक्ट. Bank should be follow the rules of this act. So that is a banking regulation 1949. Banking company means any company. देखो banking क्या है, this is a company, this is a financial company. So the banking company means a company which transact मतलब क्या, व्यवहार करना, the business of banking in India, जो बैंकिंग का बिजनेस ट्रांजेक्ट करता है, बैंकिंग का व्यवहार करता है. So what is a banking? So here the word banking means what? Defined as accepting for the purpose of lending or investment of deposit of money from the public, repayable on demand or otherwise, or withdrawal by check, draft order or otherwise. समझा? So देखो डेफिनेशन क्या होता है, बैंकिंग में what? It accept the deposit of money from public. So bank means what? This definition that bank accept the deposit of money from the public for the purpose of lending or investment. एंड दिस डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक रीपेबल, ये जो डिपॉजिट ऑफ मनी है पब्लिक से हमने लिया है, वो क्या होता है, रीपे हो सकता है, वापस मिलेगा आपको पैसा. जो आपने डिपॉजिट किया है बैंक में पैसा, वो बैंक के लिए लाइबिलिटीज है, बैंक वो पैसा अपने पास नहीं रखेगी. इट शुड बी रीपेबल टू यू ऑन योर डिमांड, जब आप डिमांड करोगे तब, ठीक है. और अदरवाइज या दूसरे तरीके से आपको जब आप डिमांड करो तब मिलेगा, या फिर अगर आपका फिक्स डिपॉजिट है तो टाइम जब एक्सपायर होगा तब आपको मिलेगा. फिक्स डिपॉजिट माने जैसे हमने 10 साल के लिए एफडी किया या 5 साल के लिए एफडी किया, तो 5 साल खत्म होगा तो आपको पैसा मिलेगा. आप डिमांड करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा. बट सेविंग और करंट अकाउंट में पैसा डालते हो आप, तो इट इज रिपेबल ऑन डिमांड. एंड विड्रॉल बाय चेक, और आप चाहे तो इसको कैसे विड्रॉ कर सकते हो, पैसे को विड्रॉ करने के लिए क्या है, दिस इज चेक, चेक से विड्रॉ कर सकते हो. और डिमांड ड्राफ्ट से दे सकते हैं, और ऑर्डर अदरवाइज, तो ये जो डिमांड ड्राफ्ट भी बना सकते हैं. सो डिमांड ड्राफ्ट और चेक बोथ आर द सेम. देखो दोनों बच्चों एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं, तो हम कहते हैं बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं. आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हो, बैंक वो पैसा क्या करता है, लेंड्स करता है और इन्वेस्टमेंट करता है. जो पैसा आपने डिपॉजिट किया उसको बैंक करता है, लेंस और इन्वेस्टमेंट करता है. एंड इफ यू नीड द मनी, the bank repay you that money on your demand or otherwise, or withdrawal, you can be withdraw the money by the check, ठीक है. चेक से विड्रॉ कर सकते हो, ड्राफ्ट के थ्रू पैसा विड्रॉ कर सकते हो. ड्राफ्ट एंड चेक बोथ आर द सेम, दोनों भी मोस्टली क्या है, सेम है. सिर्फ डिफरेंट कैसा है, मीन्स चेक जो होता है वो डिसऑनर भी हो सकता है, ठीक है, अगर आपके पास सिग्नेचर प्रॉपर नहीं है या फिर बैंक में बैलेंस नहीं है. लेकिन डिमांड ड्राफ्ट वो चीज़ है जिसमें पेमेंट की गारंटी होती है, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट बैंक इशू करता है बाय चेकिंग यूर द बैंक बैलेंस. बैंक बैलेंस के बेस में आपको पहला बैंक में पैसा उतना मेंटेन करना पड़ता है, उसके बाद बैंक आपको क्या होता है, चेक इशू करता है. दिस कॉज अ डिमांड ड्राफ्ट. सो देयर इज अ लेस चांसेस ऑफ डिसऑनर ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट. डिमांड ड्राफ्ट इज नॉट डिसऑनर, मींस कैंसल, ठीक है. सो बैंकिंग का मतलब समझा. सो बैंक मींस व्हाट, द कंपनी विच ट्रांजेक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ बैंकिंग, उसको बैंक बोलते हैं. सो व्हाट इज अ बैंकिंग, बैंकिंग मींस व्हाट, दिस इज अ फंक्शन ऑफ बैंक. तो बैंक का फंक्शन क्या है, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट ऑफ द मनी फ्रॉम पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, एंड दिस डिपॉजिट ऑफ मनी रिपेबल ऑन डिमांड, जो पैसा रिपे कर सकते हैं डिमांड बाय चेक एंड ड्राफ्ट और अदरवाइज, ठीक है बच्चों. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग. सो हियर द बैंकिंग, अगेन आई एम रिपीटिंग, बैंकिंग मींस व्हाट, एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट एंड गिविंग द लोन्स एंड एडवांसेस टू द पर्सन, ठीक है. दिस इज अ बैंकिंग फंक्शन फॉर विच द बैंकिंग इज एक्चुअली स्टार्टेड. अगर ये फंक्शन वो नहीं करता तो हम उसको बैंक नहीं बोलते बच्चों, ठीक है. So types of the bank, there are the several types of bank as follow: central bank, commercial bank, cooperative bank, development bank, exchange bank, regional rural bank, saving bank, investment bank, and specialized type of bank. So these are the types of bank which will be see one by one. Let's see first one, central bank, ठीक है. जो सेंट्रल बैंक क्या है, देखो every country having the central bank. Central bank is the toppest and apex bank of the country who having the टॉपेस्ट मॉनेटरी अथॉरिटी, जिसके पास पूरी मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, पैसे की पूरी अथॉरिटी पावर उसके पास होती है, ठीक है. सारे पैसे के ऊपर कंट्रोल उसका होता है. दिस इज अ सेंट्रल बैंक. सो सेंट्रल बैंक इज एपेक्स, एपेक्स मींस टॉप, एकदम हाईएस्ट
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द बैंकिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री, मतलब कंट्री की जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री सबसे टॉपेस्ट पोजीशन जो ऑक्यूपाइड करता है, जो एपेक्स पोजीशन को ऑक्यूपाइड करता है, उस बैंक को बोलते हैं सेंट्रल बैंक। सो एवरी कंट्री हैज देयर ओन सेंट्रल बैंक, हर एक कंट्री के पास खुद का सेंट्रल बैंक होता है, एक सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ सेंट्रल बैंक, और इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, सेंट्रल बैंक आरबीआई। आरबीआई देखो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो किसका काम करता है, सेंट्रल बैंक का काम करता है। द आरबीआई वाज स्टैब्लिश इन 1945, आरबीआई को 1945 पे स्टैब्लिश अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1944। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट था ना 1944, उस एक्ट के अंडर उसको रजिस्टर किया। समझ में बच्चों? सो पहले हमने एक्ट बनाया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, रूल्स बनाया, रिजर्व बैंक का एक्ट बनाया, उस एक्ट के अंडर उसको क्या किया, मीन्स रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? देखो एज अ एपेक्स बैंक, एज अ बैंक टॉपेस्ट बैंक ऑफ द कंट्री, सो फंक्शन परफॉर्म बाय द रिजर्व बैंक दैट इज अ फ्रेम द मॉनेटरी पॉलिसी। देखो ये जो बैंक ऐसा है जो कंट्री के मनी सप्लाई, जो कंट्री के बैंकिंग एक्टिविटी उस पर कंट्रोल करता है। So that's why he framed all the rules and regulation relating the money supply in the country. So that is called a monetary policy. The policy that is related to the supply of the money, to control the inflation, to control the money supply, to control the interest rate. That is a monetary policy. The policy that is related to the money. It is framed by the RBI. Issue of currency note. RBI also issue the currency note of all denomination. सारे डिनोमिनेशन के करेंसी नोट क्या करता है, वो इशू करता है, एक्सेप्ट द 1 रुपीज कॉइन। इट इज डायरेक्टली इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मींस गवर्नमेंट डायरेक्ट इशू करती है। हाँ, और उसके अलावा बाकी जितने भी डिनोमिनेशन के करेंसी नोट होते हैं, इट इज टू बी इशूड बाय द मींस सेंट्रल बैंक, दैट इज द आरबीआई। एक्ट एज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ये क्या होता है, गवर्नमेंट के बैंक का रोल प्ले करता है। इट इज एक्ट एज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का बैंक है। मींस जैसे अभी आप जिस जहां पे आपका अकाउंट होगा जिस बैंक में, उसको आप क्या बोलते हो, दिस इज माय बैंक। वैसे गवर्नमेंट का भी, और आप क्या करते हो, आपके जितने भी सेफेस्ट पैसे होते हैं, जो भी आपके पैसे हैं, जो भी आपके पास मनी है, डॉक्यूमेंट्स, हर चीज आप क्या करते हो, बैंक के पास जमा करते हो। तो वो तुम्हारा बैंक, जैसे मेरा आईडीबीआई में बैंक में अकाउंट है, तो मैं आईडीबीआई को क्या बोलूँगा, दिस इज माय बैंक। तो वैसे गवर्नमेंट के भी जितने भी मनी है, फंडिंग है, फाइनेंस है, वो सभी कुछ कौन प्रोवाइड करता है, सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है। दैट्स व्हाई इट इज एक्ट एज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। उसके बाद एक्ट एज अ बैंकर्स टू द कमर्शियल बैंक, अदर बैंक। सो बैंकर्स टू द बैंक भी बोल सकते हैं। तो ये किसका रोल प्ले करता है, बैंकर्स टू द बैंक, बैंकों का भी बैंक है। जैसे समझो ये बैंक है और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो पब्लिक जब ये इस बैंक में पैसा डिपॉजिट करती है, उसका कुछ परसेंट ये क्या करता है, आरबीआई के पास रखता है। फ्यूचर में अगर इसको फाइनेंस की जरूरत होगी तो आरबीआई इसको सपोर्ट करता है। सो इट इज अ बैंकर्स टू द बैंक, ये बैंकों का भी बैंक है। जैसे मेरा बैंक है जिसमें मेरा अकाउंट ओपन है, तो वैसे ही इस कमर्शियल बैंक या अदर कोई भी बैंक है कंट्री के, उसका आरबीआई में अकाउंट होता है, और आरबीआई क्या करता है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, और अपने जो फंड है वो क्या कहते हैं, आरबीआई में डिपॉजिट। सो दैट्स व्हाई दिस आरबीआई इज आल्सो कॉल्ड एज अ बैंकर्स टू द बैंक। समझ में? तो आरबीआई ये सब फंक्शन प्ले करता है। सो फर्स्ट बैंक दैट इज अ सेंट्रल बैंक। सेकंड कमर्शियल बैंक। देखो कमर्शियल मतलब क्या, जो बैंक प्रॉफिट के लिए काम करता है। आरबीआई प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, सेंट्रल बैंक इज नॉट अ कमर्शियल बैंक। देयर मेन एम इज नॉट अर्न द प्रॉफिट, देयर मेन एम टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ऐसा उसका मेन एम है, टू मेंटेन द फाइनेंस। बस in the case of commercial bank, the word commercial itself, that this is a bank which is established to earn the profit, who is established to earn the profit. So this is a commercial bank. The commercial bank play the important role in the economic development, economic and social development of country by providing the financial support to the business एंड अदर एक्टिविटीज। देखो कमर्शियल बैंक क्या करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कंट्री के, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कमर्शियल बैंक परफॉर्म द इंपॉर्टेंट फंक्शन सच एज प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। दे आर द टू फंक्शंस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। प्राइमरी इसी को हम बैंकिंग फंक्शन बोलते हैं, जिसके लिए बैंक एक्चुअली स्टार्ट हो गया है, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ बैंक दिस प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड लेंडिंग ऑफ द मनी, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और मनी को लेंड्स करना, दिस द प्राइमरी फंक्शन एंड बैंकिंग फंक्शन। एंड सेकेंडरी फंक्शन दिस द ऑप्शनल फंक्शन ऑफ द बैंक, ठीक है। अगर ये फंक्शन नहीं करेगा तो भी उसको बैंक बोलेंगे, लेकिन ये प्राइमरी फंक्शन अगर बैंक परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको हम बैंक नहीं बोलेंगे। समझ में? तो सेकेंडरी फंक्शन जिसमें आता है एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन। सो दे आर द टू मेन फंक्शन ऑफ बैंक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शन हैविंग द टू टाइप्स, एक्सेप्ट द डिपॉजिट, गिव द लोन्स एंड एडवांसेस, एंड सेकेंडरी फंक्शन also having the two subtypes, agency function and utility function.
ठीक है बच्चों. सो कमर्शियल बैंक इट इज अ इंपॉर्टेंट बैंक ऑफ द कंट्री दैट कैन बी हेल्प टू द डेवलप इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ठीक है बच्चों. इन इंडिया कमर्शियल बैंक आर द डिवाइड द थ्री ग्रुप्स. कमर्शियल बैंक को तीन पार्ट में डिवाइड किया है. पब्लिक सेक्टर बैंक वेयर द मेजोरिटी ऑफ कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट सच एज अ बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है. तो ये क्या हो गया पब्लिक सेक्टर बैंक. ठीक है. तो जो कमर्शियल बैंक है उसमें पहला बैंक कौन सा है पब्लिक सेक्टर, दूसरा प्राइवेट सेक्टर, तीसरा फॉरेन बैंक. तो पब्लिक सेक्टर बैंक एज अ नेम इंडिकेट द बैंक विच इज ओन बाय गवर्नमेंट. ठीक है. मीन्स गवर्नमेंट ने जिसने ओन किया है तो उसका मेजोरिटी ऑफ जो शेयर कैपिटल है वो किसका होगा गवर्नमेंट होगा. सच एज अ बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का उसमें एग्जांपल होगा बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ये सब कौन से बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक है. दूसरा बैंक है बच्चों प्राइवेट सेक्टर बैंक. प्राइवेट सेक्टर बैंक जो होता है दिस इज अ बैंक विच इज ओन which majority of shares owned by the individual person, private person. There is a minimum share of the government and majority of shares owned by the individual or the any organization, any group of person such as a Axis Bank, HDFC Bank. This is a private sector bank. Next foreign bank are those bank which are the established outside India. देखो वो बैंक ऐसे जिसका जो रजिस्ट्रेशन एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया में है बट दिस बैंक हैव द ब्रांच इन इंडिया सच एज सिटी बैंक, HSBC बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक. ये सब कैसे बैंक है फॉरेन बैंक है बच्चों. इसका जो हेड ऑफिस है इसके जो रजिस्ट्रेशन है ये आउट ऑफ इंडिया में हुआ है बट देयर ब्रांचेस इन इंडिया. दिस कॉज अ foreign bank. So commercial bank has a three types: public sector, private sector, foreign bank. Public sector majority of share held by the government, private sector majority of share held by the individuals, and foreign bank the majority of shares held by the foreign government and is registered on the outside of India. ठीक है. So this is a commercial bank. सो देखो यहाँ पे दिया है पब्लिक सेक्टर बैंक में देखो एग्जांपल दिया है SBI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक. ठीक है. ये सब क्या यूनियन बैंक, IDBI बैंक. दिस ऑल आर द बैंक विच इज ओन बाय द गवर्नमेंट. ये सब गवर्नमेंट बैंक है. उसके बाद देखो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है. एक्सिस बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गए, धनलक्ष्मी बैंक हो गया, DCB बैंक हो गया, ING. ठीक है. व्यास. उसके बाद RBL मीन्स रत्नाकर बैंक ऑफ बैंक लिमिटेड, साउथ इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक. ये सब देखो प्राइवेट सेक्टर बैंक. इस बैंक में मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स ये सब बैंक मेजॉरिटी शेयर किसने ओन किया है प्राइवेट इंडिविजुअल. और ये फॉरेन बैंक है. दिस बैंक ऑफ द आउट ऑफ द कंट्री. ये आउट ऑफ कंट्री के बैंक है जो अपने कंट्री में इसके ब्रांचेस चल रहे हैं. HSBC हो गया, ANG हो गया, पब्लिक बैंक हो गए, सिन्हान बैंक हो गए. उसके बाद UOB ऐसा स्टैंडर्ड चार्टर बैंक. तो ऐसे हांगकांग लियोंग बैंक. दिस आर द मेनी बैंक. दिस अ फॉरेन बैंक विच इज ऑपरेटिंग इन द इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं. उनके ब्रांचेस इंडिया में है या इंडिया के बाहर भी अदर जगह मेनी कंट्रीज में इनके ब्रांचेस है. तो इनको फॉरेन बैंक बोलते हैं बच्चों. ठीक है. सो दे आर द थ्री टाइप्स ऑफ द कमर्शियल बैंक. ठीक है. पहला हमने सेंट्रल बैंक फिनिश किया, सेकंड कमर्शियल बैंक, नाउ थर्ड कोऑपरेटिव बैंक. देखो कोऑपरेट मतलब हेल्प सपोर्ट. ये बैंक ऐसे है जो कोऑपरेट करने के लिए हेल्प करने के लिए जो स्मॉल सेक्टर मीन्स जो स्मॉल मीडियम ऐसे जो सेक्टर्स है एग्रीकल्चर ऐसे सेक्टर को हेल्प करने के लिए बैंक फॉर्म हुए हैं. इन इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का रजिस्टर ऑन द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड रेगुलेटेड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. देखो ये जो इंडिया में जो कोऑपरेटिव बैंक है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर रजिस्टर. कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कौन सा है 1912 जो कोऑपरेटिव सोसाइटी उसके अंडर. और बैंकिंग रेगुलेशन है 1949 अभी हमने जो देखा उसके अंडर क्या होते हैं रजिस्टर होते हैं. सो दीज आर द बैंक विच आर रजिस्टर्ड ऑन द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. सो इट इज वर्क लाइक द कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है. जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने 11th में पढ़ा रहेगा. कोऑपरेटिव मतलब वो सोसाइटी जो क्या होते हैं मोस्टली जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग क्या होते हैं उसके मेंबर्स होते हैं और जो फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रेंथ करने के लिए फाइनेंशियली उनको इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ होने के लिए वो क्या होते हैं इसमें जुड़ते हैं. समझ में. सो कोऑपरेटिव बैंक. सो कोऑपरेटिव बैंक आर द पॉपुलर इन द सेमी अर्बन. सेमी मतलब क्या जो पूरी तरह से शहरी नहीं है सेमी शहरी एरिया है. ठीक है. एंड रूरल एरिया. ठीक है. ऐसे एरिया में ये बैंक क्या होते हैं ज्यादा पॉपुलर है बच्चों. द मेन एम ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इज टू प्रोवाइड द क्रेडिट टू द इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल. ना जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं लाइक द फार्मर, स्मॉल स्केल यूनिट्स, छोटे छोटे स्मॉल स्केल बिजनेस. यूनिट में इंडस्ट्री बिजनेस जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं. ठीक है. सो दिस इज द बैंक विच इज एस्टैब्लिश इन द सेमी रूरल एरिया और सेमी अर्बन एरिया. ठीक है. एग्जाम्पल देखो PMC बैंक, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक. अभी आप इसको ज़्यादा जानते रहोगे PMC बैंक. देयर द बिग केस इन द फ्यू डेज बिफोर. ठीक है. इसके साथ बहुत बड़ा केस होगा था मतलब मनी का प्रॉब्लम हुआ था इनको. ठीक है.
उसके बाद जनरली द कोऑपरेटिव बैंक वर्क एट द 3 डिफरेंट लेवल। देखो मनी जो कोऑपरेटिव बैंक है ना 3 डिफरेंट लेवल पे काम करता है। प्राइमरी, उसके बाद दूसरा होता है डिस्ट्रिक्ट और तीसरा होता है स्टेट। ऐसे 3 लेवल पे वो काम करता है। तो पहला हम कहते हैं प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी वर्क एट अ विलेज लेवल। देखो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी जो है विलेज लेवल पे काम करती है, ठीक है। दे कलेक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स एंड टू द कॉमन पब्लिक। ये जो मेंबर्स होते हैं ना, उनके जितने भी मेंबर्स होते हैं, समझो अभी प्राइमरी क्रेडिट बैंक में मैं मेंबर्स हूँ तो मुझसे क्या है डिपॉजिट करेंगे और कॉमन पब्लिक से भी डिपॉजिट करते हैं। और वो डिपॉजिट का पैसा क्या कहते हैं, दे आल्सो गेट फंड फ्रॉम द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। देखो ये और फंड कहाँ से इनके पास होता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग। ये सब पैसे को क्या करते हैं, लेंड्स करते हैं स्मॉल फार्मर, आर्टिजन्स, रूरल वर्कर, रूरल बिजनेसमैन, कॉटेज इंडस्ट्री, ये सब को क्या करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। सो देयर फंडिंग कम फ्रॉम द deposit from the member, common public, and they also get the financial assistance from the state bank and district cooperative bank। ठीक है, मतलब ये ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाला बैंक है, मतलब एकदम रूट लेवल पे काम करता है। ठीक है, सेकंड बैंक है डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इसके ऊपर वाला बैंक, मतलब ये जो आपने बताया प्राइमरी बैंक, प्राइमरी जो क्रेडिट सोसाइटी है उसके ऊपर वाले लेवल पे काम करता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। दिस बैंक ऑपरेट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये कहाँ पे काम करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जैसे थाना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ऐसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट पे काम करता है। दे ऑब्टेन द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब उसके डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पब्लिक है उनसे क्या होता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। एंड ऑल्सो गेट फंड फ्रॉम द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इसको भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से फंडिंग मिलता है। ठीक है, अभी देखो जो प्राइमरी बैंक था उसको फंड डिस्ट्रिक्ट भी देता था, स्टेट भी देता था, लेकिन अभी ये प्राइमरी के ऊपर वाला लेवल है, प्राइमरी के ऊपर वाला लेवल है डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट किससे लेगा, सिर्फ स्टेट से लेगा। क्योंकि सबसे टॉप लेवल पे कौन काम करता है, स्टेट, स्टेट के नीचे कौन काम करता है, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के नीचे कौन काम करता है, प्राइमरी क्रेडिट। सो प्राइमरी क्रेडिट दोनों से लेता है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट दोनों से लेता है फंडिंग। और ये क्या करता है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वाला किससे लेता है, सिर्फ स्टेट से क्या होता है, फंडिंग लेता है फ्रॉम द पर्पज ऑफ लेंडिंग। ठीक है, सो थाने जनता सहकारी बैंक, इट इज लाइक द डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। सो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, थर्ड वन इज अ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। दिस बैंक ऑपरेट एट अ स्टेट लेवल। देखो जैसा नाम से बताया वैसे स्टेट पे काम करते हैं, जैसे महाराष्ट्र स्टेट, गुजरात स्टेट, ऐसा अलग एमपी स्टेट हो गया, ऐसा अलग अलग स्टेट, गोवा स्टेट हो गया, ऐसा अलग अलग स्टेट लेवल पे काम करता है। ठीक है, दिस बैंक ऑपरेट एट स्टेट लेवल, दे प्रोवाइड द फंड टू द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी एज रिक्वायर्ड। देखो ये सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी को फंडिंग देता है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग और द डिस्ट्रिक्ट बैंक एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, उनको क्या करता है, ये पूरे उनके फंक्शन को मीन्स मॉनिटर करता है। जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो भी वो एक्टिविटीज करते हैं, उनके ऊपर क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है, क्योंकि ये उनको फाइनेंस देता है ना बच्चों, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी और डिस्ट्रिक्ट बैंक दोनों को ही फाइनेंस देता है। तो इनको क्या करता है, उनके फंक्शन को मॉनिटर करना, निरीक्षण करने का काम करता है। तो उनका हेड ऑफ बैंक हो गया स्टेट बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, और यहाँ पे गोवा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, दिस आर द एग्जांपल ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है, अभी कोऑपरेटिव बैंक हो गया, पहला हमने सेंट्रल, दूसरा कमर्शियल, तीसरा कोऑपरेटिव। अब चौथा बैंक है बच्चों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। देखो ये जो बैंक नाम से मालूम पड़ता है, दिस इज अ बैंक which is established to provide the financial support for the industrial development activity. This is called the industrial development bank. These are the financials that provide the medium term and long term fund to the business firm. देखो medium term से लेके long term, medium term is to upgradation of technology and long term to establish a new business, new technology, to purchase a new technology, to purchase the fixed assets. This was a long term funding. ठीक है, टू द बिजनेस फर्म। एग्जाम्पल डेवलपमेंट बैंक आर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एफसीआई, आईएफसीआई, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एसएफसी, महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एमएसएफसी। ये सब क्या है, मीन्स डेवलपमेंट बैंक के एग्जाम्पल, जैसे आईडीबी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, जो क्या होता है, इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए फंडिंग देते हैं। सो उनके फंक्शन क्या देखो, दो प्रोविजन, उनके फंक्शन क्या है, दो सम फंक्शन ऑफ डेवलपमेंट बैंक आर एज फॉलो। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोविजन फॉर मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म फंड टू द बिजनेस। जो बिजनेस यूनिट है वो मीडियम टर्म से लेके लॉन्ग टर्म फंड है। मीडियम टर्म मतलब अप टू 5 years, लॉन्ग टर्म मतलब 5 years और 20 years, 25 years। दिस इज अ लॉन्ग टर्म फंड टू द बिजनेस यूनिट फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट, एक्सपांशन, मॉडर्नाइजेशन। बिजनेस को एक्सपांड करना है, मुझे नया ब्रांच चालू करना है या मॉडर्नाइजेशन करना है, ऐसे नए नए मॉडर्न टेक्निक मुझे लानी है, तो उसके लिए फंडिंग देता है।
उसके बाद सेकंड फंक्शन है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर इशू बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एसबी के बच्चों को इसके बारे में मालूम होगा, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स अभी हमने रिसेंटली पढ़ाया भी था। अंडर राइटिंग जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में बताया था मैंने बच्चों, इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट नॉट कलेक्टेड बाय द कंपनी, द कंपनी कैन नॉट बी स्टार्ट द बिजनेस। सो अंडर राइट इज अ पर्सन हु गिव द गारंटी टू कलेक्ट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट, ठीक है, वो अंडर राइटर है, ठीक है, मतलब पब्लिक कंपनी के शेयर्स पब्लिक को बेचने की गारंटी देता है, ठीक है। अभी समझो मैं कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, और मुझे फंडिंग की जरूरत है, तो फंडिंग मैं कैसे करता हूँ, बाय इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है बच्चों। तो अगर वो शेयर्स मैं पब्लिक में बिकेंगे ही नहीं, पब्लिक को शेयर्स परचेस ही नहीं करेगी, तो मेरा फंडिंग ही नहीं आएगा। हाँ, तो उस टाइम पे जो अंडर राइटर जो पर्सन है हु गिव द गारंटी फॉर दी सब्सक्राइब ऑफ दिस शेयर्स, मतलब शेयर्स को सब्सक्राइब करने का मतलब पब्लिक को सेल करने की गारंटी देता है वो, ठीक है, और जिससे क्या होता है पब्लिक कंपनी फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। दिस इज कॉल्ड अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, इट इज डन बाय द डेवलपमेंट बैंक। परचेस ऑफ डिवेंचर बॉन्ड्स, अभी कंपनी के जो डिवेंचर्स है बॉन्ड्स है, ये कौन से फंड है, बोरोड फंड है, ठीक है, ये बोरोड फंड, ये शेयर्स और बोरोड फंड दो टाइप के सोर्स ऑफ फंड होते हैं। तो शेयर्स को क्या होता है, अंडरराइट करता है, और कंपनी के डिवेंचर्स और बॉन्ड्स को क्या करता है, वो परचेस करता है और उसको फंडिंग देता है, ठीक है, कंपनी को, ताकि कंपनी स्टैब्लिश हो सके, स्टार्ट हो सके, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द डेवलपमेंट बैंक, दिस इज अ फंक्शन ऑफ डेवलपमेंट बैंक, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिफ्थ टाइप है एक्सचेंज बैंक। देखो एक्सचेंज बैंक क्या करता है, एक्सचेंज बैंक फंड को एक्सचेंज, मनी को एक्सचेंज करता है, पैसे को एक्सचेंज करता है। द एक्सचेंज बैंक एज वेल एज लार्ज कमर्शियल बैंक फैसिलिटेट द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। कमर्शियल बैंक भी एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन करते हैं। उसके अलावा जो एक्सचेंज बैंक है वो भी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी के साथ एक्सचेंज करना। समझो अभी मैं फॉरेन से क्या कर रहा हूँ, अमेरिका से गुड्स परचेस कर रहा हूँ, तो मैं रुपीज़ में परचेस करूँगा ना, मैं डॉलर में परचेस करूँगा ना, जब मैं पेमेंट करूँगा तो मुझे डॉलर, और मेरे पास क्या होते हैं, रुपीज़ होते हैं। तो एक्सचेंज बैंक क्या करता है, एक्सचेंज बैंक को मैं रुपीज़ सरेंडर करूँगा और एक्सचेंज बैंक मुझे क्या करेगा, डॉलर देगा, और मैं अमेरिकन वेंडर है उसको क्या करूँगा, पेमेंट करूँगा। So this is called exchange bank, which provide the financial assistance by exchanging the currency. Example of exchange bank are the Barclays Bank, Bank of Tokyo. These are the example of exchange bank. ठीक है, Barclays Bank जो है और बैंक ऑफ टोक्यो, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सचेंज बैंक। ऐसे बहुत सारे एक्सचेंज बैंक इंडिया में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सम फंक्शन ऑफ द एक्सचेंज बैंक आर फाइनेंसिंग द फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन। तो फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन उसको फाइनेंस देता है, समझ में, जैसे फॉरेन ट्रेड में कर रहा हूँ, फॉरेन ट्रेड मतलब क्या बच्चों, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है, उस टाइम पे मुझे पैसे की जरूरत पड़ती है तो फंडिंग वो करता है। उसका इश्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, देखो ये लेटर ऑफ क्रेडिट है, आपने इल्म में पढ़ा होगा लेटर ऑफ क्रेडिट का था, फॉरेन ट्रेड के लिए बहुत जरूरी होता है। जो इम्पोर्टर्स बैंक है ना, इम्पोर्टर बैंक किसको इशू करता है, एक्सपोर्टर के बैंक को, ठीक है, किसके लिए इशू करता है, टू मेक द पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट। जब वो पैसा यहाँ से गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, इसका पेमेंट होकर के देगा एक्सपोर्टर के बैंक को, समझ में। सो टू गारंटी फॉर द पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट, इसके लिए क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट्स है जो क्या करते हैं, अभी आपने 12th के बुक में है, बुक कीपिंग में बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या, एक प्रॉमिसरी नोट होता है, ठीक है। अभी समझो किसी कस्टमर के पास, अभी समझो मैं बिजनेस हूँ, मैंने क्या किया है, मैंने किसी कस्टमर को 1 लाख का गुड्स उधारी पे सोल्ड किया है, तो उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, उसे एक प्रॉमिसरी नोट लिख के देता हूँ, उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं उसको, बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रॉमिसरी नोट लिख के लिया कि भाई ये पर्सन मेरे से 1 लाख का गुड्स इसने परचेस किया है, ये मेरे को क्या करे, पैसा इतने पीरियड के बाद रिटर्न करेगा इसका गारंटी का एक प्रॉमिसरी नोट लिख के लेगा। तो उस प्रॉमिसरी नोट को क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। समझो उसने मेरे को 3 महीने का प्रॉमिस दिया है, तो पैसा मुझे 3 महीने के बाद मिलेगा बच्चों, तो तब तक वो पैसा 3 महीने के लिए ब्लॉक हो गया 1 लाख रुपए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये पैसा अगर मुझे चाहिए तो मैं बैंक को बिल ऑफ एक्सचेंज सरेंडर करता हूँ और बैंक से पैसे लेता हूँ, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी 1 लाख का बिल मैंने बैंक को दिया, बैंक क्या करेगा, कुछ चार्जेस कट करके, हाँ, मुझे क्या करेगा, रिमेनिंग अमाउंट देगा, इंटरेस्ट चार्ज कट करके। समझो मुझे 1 लाख का है, उसने 2000 कट किया, उसको बोलते हैं डिस्काउंट, और 98,000 जो डिस्काउंटेड अमाउंट, डिस्काउंट माइनस करके जो 98,000 मेरे को देगा वो, ठीक है। तो मुझे क्या किया, उसने फाइनेंशियल सपोर्ट किया, तो मेरा पैसा जो ब्लॉक हुआ था वो पैसा क्या हो गया, वो मेरे को इजीली बिफोर द मैच्योरिटी डेट वो मेरे को मिल गया। उसका रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अभी देखो हम पैसा जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ से मुझे क्या, समझो मुझे फॉरेन अमेरिका में किसी कंपनी में मैंने शेयर्स परचेस किया, तो वहाँ से मुझे क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, वहाँ से मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मैंने लोन में पैसा इन्वेस्ट किया तो, और मैं वहाँ पे समझो मेरी कंपनी में वहाँ पे मेरा शेयर्स है, तो मेरे को प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। सो दीज आर रेमिटेड मतलब ट्रांसफर बाय दैट एक्सचेंज बैंक, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शन दैट परफॉर्म बाय एक्सचेंज बैंक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बैंक है रीजनल रूरल बैंक। अभी रूरल बैंक जो रीजनल लेवल पे काम कर, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी। सो व्हाट इज अ रीजनल रूरल बैंक,
ठीक है। सो द वेयर रीजनल रूरल बैंक वेर स्टैब्लिश इन 1975। देखो रीजनल रूरल बैंक कब स्टैब्लिश करा था? 1975। दिस बैंक आर स्पॉन्सर्ड बाय लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक। इसको स्पॉन्सरशिप किसने किया बच्चों? हाँ, स्पॉन्सर मतलब शेयर होल्डिंग करना, उसके बैंक में फंडिंग करना। समझा? अभी मुझे बैंक स्टार्ट करना है तो मेरे को बैंक ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकता, आई नीड द फंड, तो मेरे को फंडिंग करता है। कौन करता है? मीन्स पब्लिक सेक्टर बैंक। द कैपिटल ऑफ आरआरबी इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो आरआरबी का जो कैपिटल है सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन में सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द 50% एंड स्टेट गवर्नमेंट 15%। स्टेट गवर्नमेंट ने कितना फंडिंग किया होता है? 15%। एंड स्पॉन्सर बैंक जो है, ठीक है, जिस बैंक ने इसकी स्पॉन्सरशिप ली है वो 35% कंट्रीब्यूशन। तो मेजॉरिटी ऑफ जो शेयर्स है वो किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो ये बैंक क्या होता है? इस सब के स्पॉन्सरशिप पे बैंक क्या होता है? चालू होता है, स्टार्ट होता है, स्टैब्लिश होता है। सो आरआरबी मोबिलाइज द डिपॉजिट प्राइमरी फ्रॉम द रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया। ठीक है, ये जो डिपॉजिट ऑफ फंड है, जो रूरल एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, जो सेमी अर्बन में रहने वाले लोग हैं, उनके फंड को मोबिलाइज करता है, उनसे ट्रांसफर करता है और डिपॉजिट में कन्वर्ट करता है। और वो डिपॉजिट का जो पैसा उनसे कलेक्ट करके गिव द प्रोवाइड द लोन एंड एडवांस मोस्टली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, एग्रीकल्चर लेबरर एंड रूरल आर्टिजन्स। ठीक है, ये रूरल बैंक है तो रूरल लेवल पे क्या करता है? वहाँ के जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, एग्रीकल्चर लेबरर्स है एंड रूरल आर्टिजन्स है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देता है वो। ठीक है, इसको बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक। ठीक है बच्चों, सो देखो आरआरबी, ठीक है, जैसे देखो यहाँ लिखा है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, दिस इज आरआरबी रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, इसको स्पॉन्सर किसने किया हुआ है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये स्पॉन्सर बैंक है। इस तरह से उनका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इशू होता है, समझ में? तो ये बैंक में अगर आपका अकाउंट होगा ना तो इस तरह से, अभी देखो आपका डेबिट कार्ड देखोगे तो उसमें एक ही बैंक का सील होता है, लेकिन यहाँ पे कैसा होगा? दोनों बैंक का सील होगा। ठीक है, पहला जो रीजनल रूरल बैंक है उनका यहाँ पे लोगो है और यहाँ पे किसका लोगो है? जो जिसने इसको स्पॉन्सरशिप दी है। तो दिस बैंक इज स्पॉन्सर्ड बाय उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल ग्रामीण बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सो दिस आर द रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, उसके बाद देखो 7 है सेविंग बैंक। अभी देखो सेविंग बैंक में ऑल द बैंक आर सेविंग बैंक। मोस्टली ऐसा देखा जाए सभी बैंक क्या सेविंग बैंक है। ठीक है, जितने भी कमर्शियल, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर्स एंड फॉरेन बैंक, वो सब सेविंग बैंक है। ऑल द बैंक do collect the saving from the public. That's why they are saving bank. So main objective of saving banks to encourage the saving of the people. लोगों की सेविंग करने की जो हैबिट है उसको बढ़ाते हैं, स्पेशली इन द रूरल एरिया। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सच अ बैंक इंक्लूड द पोस्टल सेविंग बैंक, जो पोस्ट ऑफिस का डाक, पोस्ट ऑफिस का डाक उसका सेविंग बैंक होता है। ठीक है, एंड कमर्शियल बैंक, अभी हमने बताया कमर्शियल बैंक हैज 3 टाइप्स, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक, वो सब क्या है? सेविंग बैंक है। एंड कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक भी पढ़ा, प्राइमरी कोऑपरेटिव, सेकेंडरी कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव एंड स्टेट कोऑपरेटिव, तो ये कोऑपरेटिव बैंक। सो दिस ऑल आर द सेविंग बैंक। दे आर मेन एम टू एनकरेज द सेविंग हैबिट अमंग द पीपल, स्पेशली इन द रूरल एरिया। ठीक है, तो ये हो गया सेविंग बैंक। उसके बाद देख बच्चों नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, अभी जो इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो क्या करता है? फंडिंग, इन्वेस्टमेंट करता है, अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग प्रोजेक्ट में फंडिंग करता है। दिस बैंक प्रोवाइड द फाइनेंशियल एडवाइजरी असिस्ट टू द देयर कस्टमर। ठीक है, अभी जो बैंक के जो कस्टमर होते हैं ना, समझो अभी मैं कस्टमर हूँ बैंक का, मुझे क्या करना है? समझो अभी लॉकडाउन हो गया, चलो मुझे एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, आई वांट टू स्टार्ट द न्यू बिजनेस। तो उस टाइम पे क्या करेगा वो? मेरे को फंडिंग देगा, मेरे को एडवाइस देगा। ठीक है, क्योंकि कैसा मेरा खुद का बिजनेस बंद हो गया या मेरा बिजनेस वीक हो गया, बहुत वीक हो गया, अभी मेरा क्लास बहुत कमजोर हो गया, अभी मेरे पास फंडिंग का बहुत इशू है, और बाजू वाला मेरा फ्रेंड है उसका भी क्या क्या क्लास बहुत कमजोर हो गया, तो दोनों को क्या करेगा? एडवाइजरी असिस्टेंस देगा, उनको बोलेगा आप मर्जर हो जाओ या आप अमलगमेट हो जाओ, कंबाइन करो, ऐसा क्या करके वो मेरे को क्या करेगा? फाइनेंशियल सपोर्ट और एडवाइजरी असिस्टेंस देगा और मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट भी देगा। देयर क्लाइंट जनरली इंक्लूड द बिजनेस फर्म। इनके क्लाइंट कौन होते हैं बच्चों? कोई कंज्यूमर वगैरह नहीं होते, बिजनेस फर्म एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। Investment bank facilitates the merger and acquisition by undertaking the research and providing the advice on the investment decision. देखो क्या करते हैं जो आपके जो इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं ना, वो कस्टमर के लिए मर्जर एंड एक्विजिशन, MAA मीन्स मर्जर एंड एक्विजिशन, MNA, बाय अंडरटेकिंग द रिसर्च। वो पहले रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके एडवाइस देते हैं कि आप क्या करो, कंपनी को मर्ज करो या एक्विजिशन का डिसीजन लो। ठीक है, और उसमें पैसा वो इन्वेस्ट करता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मर्जर एक्विजिशन मतलब जब दो कंपनी एक में कंबाइन हो जाती है उसको होते हैं मर्जर। जैसे ब्रुक बॉन्ड है और लिप्टन है, दोनों मिला के क्या ना, ब्रुक बॉन्ड लिप्टन,
दोनों कंपनी एक फॉर्म होगी, इसको बोलते हैं मर्ज होना, दो कंपनी एक ही में मर्ज हो जाना। देखो पेप्सी है एंड कोको कोला, दोनों को मिलाकर क्या बन गई, पेप्सी को, ठीक है। इट इज कॉल्ड अ मर्जर, टू कंपनीज मर्ज इनटू टुगेदर, ठीक है। जैसे अभी देखो यहाँ पे बीच में बैंक का बहुत इश्यू आ रहा था अपने कंट्रीज में, तो उस टाइम पे देखो गवर्नमेंट ने क्या थे, बहुत सारे बैंक को मीन्स बंद करने का उन्होंने डिसीजन लिया था, गवर्नमेंट बैंक को। तो उसमें ये सब गवर्नमेंट बैंक है, बरोबर ना। सो बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, विजया बैंक, दिस ऑल बैंक गेट टू बी द मर्ज। देखो लिखा है मेगा मर्जर, देना बैंक, विजया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सरकार ने बैंकों को विलय को मंजूरी दी, मतलब विलय मीन्स मर्जर, ठीक है, टेकओवर, एक्विजिशन, ठीक है। तो ये क्या क्या मीन्स दिस इज अ फाइनेंशियल फंक्शन, ये भी बैंक का एक फाइनेंशियल सपोर्ट है, फाइनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, मर्जर एंड एक्विजिशन। फिर ये दोनों को मर्ज करेंगे, फिर इनको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, ये इन्वेस्टमेंट बैंक उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देगा। जनरली इन्वेस्टमेंट बैंक डू नॉट डायरेक्टली डील विद द जनरल पब्लिक, ये डायरेक्टली जनरल पब्लिक से डील नहीं करते हैं, इनका डीलिंग किससे होता है, देयर क्लाइंट इज अ फर्म एंड गवर्नमेंट, सो दे डायरेक्ट डील विद द फर्म्स एंड गवर्नमेंट, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है स्पेशलाइज बैंक, 9 टाइप का जो बैंक है, 9th पॉइंट जो है स्पेशलाइज बैंक, जो स्पेशल टाइप का फंक्शन करते हैं। सो दिस बैंक कैप्चर द रिक्वायरमेंट एंड प्रोवाइड द ओवरऑल सपोर्ट फॉर सेटिंग द बिजनेस द स्पेसिफिक एरिया। देखो ये क्या आता है, लोगों की रिक्वायरमेंट को कैप्चर करता है, उनके रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखता है, और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करता है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर सेटिंग अप द बिजनेस एंड स्पेसिफिक एरिया, मतलब सही एक पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए सपोर्ट देता है। सो स्पेशलाइज बैंक में एक्सिम बैंक है, SIDBI एंड नाबार्ड, ठीक है। तो ऐसे एक्सिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एसबीआई है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट्स, ठीक है। ऐसे 3 टाइप के स्पेशलाइज बैंक है। सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, जिसको हम एक्सिम बोलते हैं, एक्सिम शॉर्ट फॉर्म है उसका। दिस बैंक प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है, एंड फंक्शन एज अ प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑर्डिनेटिंग द वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एंगेज इन द फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द व्यू टू प्रमोट द कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड। देखो इस बैंक का फंक्शन क्या है, द बैंक प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट एक्टिविटी। तो कैसे करते हैं, एज अ फंक्शनिंग एज अ प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम करता है, किसमें, जो भी बैंक इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी एक्सचेंज बैंक मैंने बताया, एक्सचेंज बैंक का पहला फंक्शन था, देखो प्रमोटिंग द सपोर्टिंग द फॉरेन ट्रेड, मतलब वो भी क्या है, जो एक्सपोर्ट जो मीन्स फॉरेन बैंक है वो क्या करता है, फॉरेन ट्रेड को एक्सपोर्ट कर रहा है, बराबर कि नहीं, तो वो मतलब इंपोर्ट मतलब इनकरेज कर रहा है, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है। फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसे लोगों को कोऑर्डिनेट करता है, समझे। जो भी बैंक, जो भी इंस्टीट्यूशन जो क्या कर रहे हैं, मीन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट को फाइनेंस कर रहे हैं और कंट्री के इंटरनेशनल ट्रेड को डेवलपमेंट करने के लिए काम कर रहा है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने का काम करता है दिस एक्सिम बैंक। इट वर्क लाइक द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इट कोऑर्डिनेट द ऑल द इंस्टीट्यूशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ द फाइनेंसिंग ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सर्विस विद द व्यू टू प्रमोट द कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड। और उस जो जितने भी फाइनेंशियल जिसका मेन एम क्या है, कंट्री के इंटरनेशनल ट्रेड को डेवलप करने का उनका मेन फंक्शन है, ठीक है। उस सब बैंकों को वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है, ताकि सब मिलके क्या कर एक दूसरे को सपोर्ट देना, कोऑर्डिनेशन करना, इंटरलिंक करना उनकी एक्टिविटी को, ताकि क्या हो सके वो इंटरनेशनल कंट्री का जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको डेवलप कर सके। क्योंकि देखो जितना बच्चों इंटरनेशनल ट्रेड डेवलप होगा उतना कंट्री को फॉरेन करेंसी अर्न करने को मिलेगा और उसकी डिपेंडेंसी मतलब इंडिपेंडेंसी बढ़ेगी, दूसरे के ऊपर डिपेंड होने की क्षमता कम हो जाएगी, समझ में। कंट्री क्या होगी, सेल्फ डिपेंड हो जाएगी, समझ में। उसके बाद सेकंड बैंक है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI। देखो इसका नाम ही है, ये स्पेशल कैटेगरी का बैंक है। IDBI बैंक का एक स्पेशल कैटेगरी है, स्मॉल इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने वाला बैंक, ठीक है। सो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI सेटअप इन द 2 अप्रैल 1990 अंडर द एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हो गया, उस एक्ट के अंडर 2 अप्रैल को ये जो बैंक है SIDBI फॉर्म किया। किस लिए फॉर्म किया, एक्ट एज अ प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये भी एक प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम करता है, जैसे एक्सिम बैंक एक प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम कर रहा है, किसके कौन से क्षेत्र में कर रहा है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र में। तो वैसे यहाँ पे ये भी प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम कर रहा है, बट इन द फील्ड ऑफ प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME के लिए क्या करना, फंडिंग देना, उनको प्रमोट करना। सो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज, सूक्ष्म, लघु एंड मध्यम उद्यम,
ठीक है। और स्ट्रेंथ हमारी शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये देखो ये एमएसएमई बैंक है, ठीक है। तो सॉरी एमएसएमई क्या है, सेक्टर्स है, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो माइक्रो इंडस्ट्रीज है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, जो मीडियम इंटरप्राइजेस है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना, प्रमोट करना, ऐसे काम करने वाले जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनको कोऑर्डिनेट करता है, उनको वो क्या करता है, हैंड फाइनेंसिंग सपोर्ट देता है। सेक्टर एज वेल एज द कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंगेज द सिमिलर एक्टिविटी, मतलब इस एक्टिविटी में जितने भी इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं एमएसएमई में, उनको कोऑर्डिनेट करना, उनके बीच में क्या था, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। दिस इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आया? सो SIDB है, इट मेनली एम टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द all the MSME units with the coordination of the other institution which is engaged in the field of the MSME, ठीक है। उसके बाद थर्ड बैंक है, स्पेशल बैंक है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखो नाबार्ड बैंक इट इज एपेक्स इंस्टीट्यूशन, जैसे सेंट्रल बैंक हो एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल द बैंकिंग सेक्टर, वैसे नाबार्ड क्या एग्रीकल्चर फाइनेंस का, रूरल फाइनेंस का एपेक्स बैंक है। एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल सेक्टर में फाइनेंस देने में सबसे टॉप पोजीशन पे ये बैंक होता है। इट इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंशिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। रूरल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में फाइनेंस को सपोर्ट पहुंचाने वाला सबसे टॉप मोस्ट बैंक है, ठीक है बच्चों। नाबार्ड प्रोवाइड द बोथ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्रेडिट थ्रू द रीजनल रूरल बैंक। जो रीजनल रूरल बैंक है उनके सपोर्ट से दोनों टाइप का क्रेडिट देता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों क्रेडिट देता है। समझ में है कि नहीं? शॉर्ट टर्म क्रेडिट मीन्स डेली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट टू परचेज द एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ये शॉर्ट टर्म हो गया। उसके बाद लॉन्ग टर्म क्रेडिट होता है टू परचेज एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स लाइक द ट्रैक्टर, इरिगेशन फैसिलिटी, हाँ, तो ये सब काम करने के लिए वो फाइनेंस फंडिंग देता है। इट कंसर्न विद द पॉलिसी प्लानिंग, ये क्या, इसका काम क्या है, ये पॉलिसी बनाता है, रूल्स रेगुलेशन बनाता है, ऑपरेटिंग ऑपरेशन प्लानिंग एंड ऑपरेशन रिलेटिंग द एग्रीकल्चर क्रेडिट, मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी पॉलिसी और प्लान है और उसके ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी प्लान एंड पॉलिसी वो बनाता है। कौन बनाता है? नाबार्ड। एग्रीकल्चर क्रेडिट फॉर द एक्टिविटी इन द रूरल इंडिया। इट प्रोवाइड द फाइनेंस टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो ये फाइनेंशियल जितने भी इंस्टीट्यूशन उसको फाइनेंस देता है, मतलब RRB, जो RRB है ना रीजनल रूरल बैंक, उनको भी फाइनेंस देता है, ठीक है। और जो कोऑपरेटिव बैंक है, प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनको भी फाइनेंस देता है, मतलब जितने, और कमर्शियल बैंक उनको भी क्रेडिट देता है ये नाबार्ड, ताकि कैसे वो फाइनेंस किसको कर सके, मीन्स जो रूरल एरिया में जो काम करने वाले जो लेबर्स है, फार्मर है, स्मॉल आर्टिजन्स है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, माइक्रो इंडस्ट्रीज है, उनको फाइनेंस दे सके। इट प्रोवाइड द फाइनेंस द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉट टू द इंडिविजुअल। ये डायरेक्ट फाइनेंस क्या करते हैं, इंडिविजुअल को नहीं देते, सब फार्मर को लोन नहीं देंगे। फार्मर को कौन लोन दे रहा है? RRB दे रहा है, रीजनल रूरल बैंक लोन दे रहा है किसको? फार्मर को। तो ये रीजनल रूरल बैंक को क्या करेगा? फाइनेंस देगा। समझ में? तो इट प्रोवाइड द फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉट डायरेक्ट टू द इंडिविजुअल्स, ठीक है बच्चों। सो नाबार्ड इज अ प्रोवाइड द फाइनेंशियल एंड द financial support for the agriculture and rural sectors, all the activity, all the business unit that is engaged in the rural area, they provide the financial support, not directly with the help of the financial institutions, ठीक है बच्चों। उसके बाद न्यू मॉडल्स ऑफ द बैंकिंग। अभी बैंकिंग का नया मॉडल्स क्या क्या है, देखो नए नए बैंक के भी अभी मॉडल्स आ रहे हैं, नए नए जो देखने को मिलते हैं आपको। देखो ऑनलाइन बैंकिंग होते हैं, वो सब नए नए मॉडल जो बैंकिंग के आए हैं अभी, ठीक है। पेटीएम हो गया, ये सब बैंकिंग वगैरह आ रहे ना, तो वो सब नए टाइप के बैंक है। वो भी बैंक है जिसको एयरटेल बैंक बोलते हैं कि नहीं, एयरटेल बैंक में पैसा डिपॉजिट, ऐड आते रहता टीवी में, तो वो भी क्या है, नया मॉडल है बैंकिंग का। तो वो क्या है, वो पढ़ते देखो नए न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग में सबसे पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन सा बैंक है? स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक आर द टाइप्स ऑफ निशे बैंक इन इंडिया। निशे बैंक मतलब जो निशे बैंक होता है उसको बोलते हैं द बैंक विच इज द स्मॉल फाइनेंस से रिलेटेड होता है, जो स्मॉल एक्टिविटी से रिलेटेड है, ठीक है। उसको कहते हैं निशे बैंक इन इंडिया। मतलब ये कहता है एक तरह की निशे, मतलब एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो उसमें क्या करता है, डील करता है। दिस आर द बैंक विद द स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस एंड प्रोवाइड द बेसिक बैंकिंग सर्विस टू द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग। देखो ये बैंक की जो बेसिक सर्विस है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो किसको प्रोवाइड करता है? जो बैंक के स्मॉल बेसिक सर्विसेज है बैंक की, स्मॉल फाइनेंस बैंक की लाइसेंस। सो देखो दिस बैंक विद द स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस एंड प्रोवाइड द बेसिक बैंकिंग सर्विस, एक्सेप्शन ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग, ये दो सर्विस देता है, बेसिक, ज़्यादा सर्विस देते नहीं। अभी देखो जो कमर्शियल बैंक है ना, प्राइमरी फंक्शन, तो ये प्राइमरी फंक्शन है बैंक का, प्राइमरी फंक्शन तो करता है। उसके अलावा सेकेंडरी फंक्शन भी करता है, जिसमें क्या होता है, एजेंसी एंड यूटिलिटी फंक्शन होता है। ये वो करता नहीं, ये बेसिक फंक्शन करेगा, सिर्फ लोगों से डिपॉजिट करके लोगों को फंडिंग देगा, ठीक है। ये मीन्स ये स्मॉल लेवल पे वर्क करते हैं, जैसे उसमें उज्विन है, ठीक है। उसके बाद RGVN है, इक्विटेस है, दिशा है, ठीक है, कैपिटल लोकल एरिया बैंक्स,
सर्वोदय बैंक। तो ऐसे 10 कंपनी इंडिया दैट गॉट द स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस फ्रॉम द आरबीआई। ये स्मॉल बैंक का स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का लाइसेंस इनको मिला हुआ है, ठीक है। दे वर्क अंडर द लाइसेंस ऑफ द स्मॉल बैंक, ठीक है। और ऐसे 10 बैंक को इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, स्मॉल बैंक का क्या किया, लाइसेंस प्रोवाइड किया बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है द मेन एम, इसका मेन है द मेन एम बिहाइंड दिस बैंक टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंक्लूजन टू द सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी नॉट बीइंग सर्व बाय द अदर बैंक सच एज अ स्मॉल बिजनेस यूनिट। देखो कुछ ऐसे बैंक होते हैं जिसको अभी तक फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला, अभी तक बैंकिंग सर्विस नहीं मिल पाया, तो ऐसे सेक्टर को वो क्या करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। द मेन एम बिहाइंड दिस बैंक, इस बैंक के पीछे एक ही एम है कि ऐसे लोग जिसको अभी तक फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं मिला, बैंकिंग की जो सर्विस होती है, अभी समझो मैं छोटा सा बिजनेसमैन है, मुझे बैंक लोन नहीं दे रहा है क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कुछ नहीं, तो ये जो बैंक होते हैं, ये जो स्मॉल बैंक होते हैं, वो मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो अदर बैंक सच एज अ स्मॉल बिजनेस यूनिट, स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर, उनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंट्रोड्यूस, जैसे आपका बिजनेस अनऑर्गेनाइज्ड है, गवर्नमेंट के कोई रूल्स और रेगुलेशन के अंडर रजिस्टर नहीं है, अनऑर्गेनाइज है, उनको भी सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। तो एग्जिस्टिंग जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, ठीक है, जो एनबीएफसी है, वो भी क्या होता है, इसी का होता है माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देन लोकल बैंक्स कैन अप्लाई टू बिकम द स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, ये सब स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का रोल प्ले कर सकते हैं। देखो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी, इंडिया बुल्स, ठीक है, आईडीएफसी, एचडीएफसी, जो एचडीएफसी बैंक है ना, वो भी क्या आता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का काम करता है, स्मॉल बैंक के लिए काम करता है। डीएचएफएल फाइनेंस हो गया, एलएनटी फाइनेंस हो गया, तो ऐसे बजाज फाइनेंस हो गया। बजाज फाइनेंस तो बहुत फेमस है, देखो जहाँ भी जाओ, किधर से कुछ भी आप परचेस करो दुकान पे, आपको बजाज फाइनेंस का क्रेडिट मिल जाता है, मतलब आपको कोई फॉर्मेलिटी नहीं, आपको आपके लोन लेने की भी आपकी क्षमता नहीं है, आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं, कुछ नहीं, तो भी क्या कहते हैं, बजाज फाइनेंस से आपको लोन मिल जा रहा है, ठीक है। बजाज फिनसर्व नहीं क्या, वहाँ पे आप क्या करोगे, बजाज के कार्ड को EMI कार्ड होता है, उसको आप अप्लाई करो, वहाँ से आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉज अ मिस स्मॉल बैंक। सो देखो दिस बैंक कैन बी प्रोमोटेड आइदर बाय इंडिविजुअल्स, देखो ये बैंक इंडिविजुअल खुद चालू करता है, और कॉर्पोरेट मतलब कोई बिजनेस चालू करता है, ट्रस्ट और सोसाइटी ये बैंक को स्टार्ट कर सकती है। दे आर स्टैब्लिश एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं, एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन द प्राइवेट सेक्टर अंडर द कंपनी एक्ट 1956, अभी तो कंपनी एक्ट 2013 है, ठीक है। वो कंपनी एक्ट 1956 एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर करके क्या होता है, अपने आप को एज अ पब्लिक कंपनी कौन सा सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दो टाइप की कंपनी, लेकिन इट इज फॉर्म एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का पार्ट टाइप है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एज अ पब्लिक कंपनी इन द प्राइवेट सेक्टर में वो वर्क करता है। दे आर गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है 1934 वो, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, ये दोनों एक्ट के रूल्स को इसे फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया स्मॉल बैंक, दिस इज अ न्यू मॉडल ऑफ बैंकिंग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक देखो, प्रोविजन फॉर द सेविंग फॉर द अनसर्व और द अनडिजर्व सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, देखो ऐसे सेक्शन है जिसको अभी तक बैंक की सर्विस नहीं मिली, अनसर्व सेक्टर है, ठीक है। प्रोविजन फॉर सेविंग फॉर अनसर्व सेक्टर मतलब वो सेक्टर जिसको अभी भी मतलब बैंक की सर्विस अभी तक नहीं मिली है। अनडिजर्व जो डिजर्व नहीं करते उस सेक्शन सर्विस को ऑफ द पॉपुलेशन, एंड सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट, छोटे छोटे बिजनेस यूनिट को जिसको क्या होता है बैंक लोन नहीं दे पा रहा है, ये क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर, उनको लोन देता है। माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री, उनको भी फंडिंग देता है। अदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये सबको फाइनेंशियल सपोर्ट देना इसका मेन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है। एग्जाम्पल आर जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस, इक्विटीज स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो देखो ये एग्जांपल्स है, ये 10 जो बैंक है दिस गॉट द लाइसेंस फ्रॉम द RBI एज अ स्मॉल बैंक, ठीक है। अभी लास्ट बैंक है दैट इज स्पेशलाइज द न्यू मॉडल ऑफ बैंक में लास्ट ऐप है पेमेंट बैंक। देखो ये जो बैंक क्या होता है, इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। देखो पेटीएम से, अभी देखो कहीं जाओगे दुकान पे, आप बोलते हो पेटीएम करो, गूगल पे करो, फोन पे करो, है कि नहीं। तो ये सब क्या है, पेमेंट बैंक के एग्जाम्पल है। इट इज अ न्यू मॉडल ऑफ बैंकिंग, ये बैंक का नया मॉडल है। इट इज कॉन्सेप्टलाइज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका कॉन्सेप्टलाइज मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किसने लाया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाया कि पेमेंट बैंक स्टार्ट करना चाहिए। द मेन एम इज टू बी ऑफर द फाइनेंशियल सर्विस टू स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम पीपल्स, स्मॉल बिजनेस को इसका सर्विस मिलेगा और लो इनकम पीपल्स को इसका सर्विस मिलेगा। देखो पान की दुकान से लेके वड़ा पाव की दुकान पे तक कि आपको पेटीएम वगैरह मिलता है कि नहीं, हर जगह पेटीएम मिल रहा है। तो छोटे छोटे बिजनेस को ये सर्विस दे सकता है। लो इनकम पीपल भी इसमें क्या करते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं।
through the payment bank. It is like the any other bank, it can carry out most of the banking function. ये क्या आते हैं, अदर बैंक ऐसा बहुत सारे बैंकिंग फंक्शन करते हैं, सच एज रेमिटेंस ऑफ सर्विस, रेमिटेंस मतलब फंड को ट्रांसफर करना, हाँ, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल के थ्रू कोई भी बैंकिंग कर सकते हैं, एटीएम कार्ड्स, इनका एटीएम देखो, पेटीएम आप यूज़ करो ना, पेटीएम का डेबिट कार्ड भी होता है, ठीक है, पेटीएम का बैंक अकाउंट होता है, ठीक है, तो ये सब एटीएम सर्विस देते हैं, एटीएम कार्ड सर्विस देते हैं। नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग मतलब आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ परचेस कर सकते हो नेट बैंकिंग के थ्रू, बट इट इज़ नॉट अलाउड टू इशू द लोन एंड क्रेडिट कार्ड। लेकिन ये क्या करते हैं, लोन नहीं देते और क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते। ये हो गए पेमेंट बैंक। सिमिलरली इट कैन बी एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट, ये डिमांड डिपॉजिट भी एक्सेप्ट ओनली अप टू 1 लाख, 1 लाख का डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया का जो पोस्ट पेमेंट बैंक है वो एग्जाम्पल इसका, ठीक है। उसका पेमेंट एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, देखो एयरटेल बैंक हो गया, पेटीएम, ये पेटीएम है बैंक एक्सेट्रा आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव पेमेंट बैंक टू द डेट, मतलब अप टू द डेट, इस डेट पे अगर देखा जाए एयरटेल बैंक, एम पैसा, जियो, फिनो, हाँ, ये पोस्टल बैंक है, देखो दिख रहा है कि नहीं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, ठीक है, एनएसडीएल है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अदर जो है पेमेंट बैंक का एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। सो टुडे आई हैव फिनिश मीनिंग ऑफ द बैंक एंड बैंकिंग्स एंड टाइप्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक, ठीक है। थैंक यू बच्चों।